have breaking news coming in right now, viewers. This in connection with the violence in Mao, and what we are going to show you, viewers, is a video that's going to nail the truth. It's the only channel. Republic TV is the only channel running this video. It's almost a 5-minute video that we are running right now that shows the truth. It exposes the truth about Mao violence, how violence was incited in Mao. How the victory procession was targeted, how cricket fans were seen carrying out the rally peacefully, and then they got attacked by a mob. That is the update we have. Remember, 13 people have been arrested. 13 people in total have been arrested till now in connection with the violence in Mao. And the latest is this video, viewers. There is no firecracker bursting in the mosque. The victory procession was leaving peacefully. The police has taken this video that we are running exclusively under investigation. In fact, this is a 5-minute and 40-second video exposing the truth of this violence. Nobody is going to show you this. Republic TV exclusively getting to you this video exposing this truth. It's on camera, viewers. It's on camera. At 1 minute 25 seconds, a person is seen calling for people from the mosque, and the crowd comes, and this after the person calls them, and then the fighting begins. The attack begins. The mob starts attack, and I'm just going to run this footage here, viewers. You're going to see this entire video. There you have, viewers. You can see the Tiranga. You can see the tricolor in the hand of the Indian cricket fans. They were celebrating, viewers, on Sunday evening. This was Sunday night when India won the Champions Trophy. The entire country was celebrating. In Mao, also, there were people celebrating. This was the victory procession. You can see people in bikes and scooters and scooties there. This is people, chanting Bharat Mata Ki Jai, and they were obviously very happy, as every Indian will be happy. But there were some people who were not happy by this victory procession. And what we see in a few seconds from now, that my colleague Satyavijay, in fact, is getting us more info on this. Let's take a listen into what he's saying. Satyavijay, tell us more. This is something that has nailed the truth. यहाँ पर ये जुलूस को रोका जाता है। ये जामा मस्जिद है जो हम वीडियो में भी दिखा रहे हैं। ये वही स्पॉट है जहां पर कि जुलूस रुका था। ये जामा मस्जिद है और 1 मिनट 25 सेकंड के बाद आपने वीडियो में देखा होगा कि एक शख्स यहां से इस क्राउड से जो जुलूस के बीच में से निकलते हुए यहां पर पहुंचता है, और यहां पर पहुंचने के बाद वो इशारे करता है। इशारे करते मतलब 1 मिनट 25 सेकंड का जो हमने वीडियो दिखाया उसमें देखा होगा कि वो अंदर से लोगों को बाहर की ओर बुलाता है। इसी दौरान यहाँ पर जो बाइक पर जुलूस में लोग शामिल थे उनसे विवाद शुरू होता है, बहस शुरू होती है, और फिर एक के बाद एक महू में 3 से 4 पॉइंट ऐसे हैं जहां पर की हिंसा हो जाती है, भगदड़ मच जाती है, पथराव होता है, आगजनी होती है। लेकिन इस वीडियो से ये साफ है, 5 मिनट का ये वीडियो है जिसमें कि हमने दिखाया कि देखिए ये जामा मस्जिद है। यहां पर अभी देखिए पूरी तरह से सन्नाटा है, फोर्स लगाया हुआ है, ये तमाम फोर्स के लोग बैठे हुए हैं। लेकिन इस 5 मिनट के वीडियो से आपको सच्चाई उजागर होते हुए हम बताते हैं, क्योंकि जो शहर काजी हैं वो भी कह रहे थे कि किसी जुलूस में शामिल व्यक्ति ने मस्जिद में सुतली बम फेंका, लेकिन इस वीडियो में कहीं पर भी हमें बम फेंकते नहीं दिखा। लेकिन जो तस्वीर आई है 5 मिनट की, उसमें 1 मिनट 25 सेकंड के बाद एक शख्स यहाँ पर जामा मस्जिद के पास इस जगह पर आता है और इशारा करता है लोगों से कि वो बाहर आए, और फिर भीड़ एकदम से बाहर आती है। यहाँ पर जो जुलूस निकल रहा था, जो मस्जिद के अंदर से क्राउड आता है, भीड़ आती है, और यहाँ पर जो जुलूस इस जगह से निकल रहा था, इनके बीच में पहले वाद विवाद होता है, उसके बाद हाथापाई होती है, और फिर हंगामा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि शहर में मऊ में कई जगह पर पथराव होता है, कई दुकानें जला दी जाती हैं, कई बाइकों को आग के हवाले कर दिया जाता है। इसीलिए पुलिस ने इस मामले में अब तक 8 FIR दर्ज कर ली है। इसके अलावा 40 नामजद आरोपी बनाए गए हैं, और पुलिस ये भी कह रही है कि वीडियो जो मिल रहे हैं उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल इस इलाके पर चूंकि पुलिस तैनात की हुई है, लेकिन तस्वीर जो है, जो वीडियो है, वो साफ साफ सच्चाई को उजागर करता है। अब इसके बाद तर्क और कुतर्क अपनी जगह है, लेकिन हम जो वीडियो दिखा रहे हैं वो यही इसी इलाके का वीडियो है, कैमरे का वीडियो है, जो जगह जगह CCTV फुटेज लगे हैं उससे हमने ये एक्सक्लूसिव वीडियो हमारे पास तक पहुंचा है, जिससे साफ होता है कि इस जगह पर आखिर
चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल के दिन क्या हुआ था। ये जो बैरिकेडिंग है, इस गली से जुलूस आता हुआ जामा मस्जिद की तरफ आता है। वीडियो में आप देख सकते हैं बाइकों पर लोग रहते हैं, उनके हाथों में झंडा रहता है। इस जगह पर थोड़ी सी पहले वो जुलूस रुक जाता है। इसके बाद एक शख्स इसी भीड़ में से, इस वीडियो में जो हमने बताया 5 मिनट का वीडियो, 1 मिनट 25 सेकंड के बाद एक शख्स इस ओर बढ़ता है, कुछ इशारे होते हैं, अंदर से लोगों को बुलाया जाता है और फिर एकदम से बहुत सारे लोग बाहर आते हैं। और जो बाहर मौजूद लोग थे जो कि जुलूस में शामिल थे, दोनों पक्ष में बहस होती है, विवाद होता है और इसके बाद यहाँ पर मारपीट शुरू हो जाती है। तो देखिए कई एंगल है, पुलिस अपने स्तर पर जांच कर रही है। यहाँ पर चूंकि सुरक्षा के लिहाज से अब हालात शांतिपूर्ण है, लेकिन ये जवान जो है जो 9 तारीख की रात से यहाँ पर तैनात है, किसी भी तरह की हिंसा ना हो इसी के लिए तैनात किए गए। लेकिन बड़ी बात यह है कि हमने शहर काजी जो है उनसे कल बात की थी, उन्होंने हमसे बातचीत में कहा था, माना था कि पथराव दोनों तरफ से हुआ है, लेकिन उनका यह कहना था कि ये पता लगाए प्रशासन कि पहला पत्थर कहां से चला। तो इस वीडियो से ये साफ है, वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि पटाखा तो नहीं छोड़ा गया, पर जो आतिशबाजी थी वो जो आप व्हाइट कलर की पुलिस की गाड़ी देख रहे हो उसके आगे कहीं जलाया गया था। और विवाद की शुरुआत इस पॉइंट से बिल्कुल जामा मस्जिद के जो गेट है इसके सामने से हुई थी। और बाकी जो फुटेज है उससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि सच्चाई क्या है। तो इस वीडियो को भी पुलिस ने संज्ञान में ले लिया है। पुलिस इस वीडियो के आधार पर भी इन्वेस्टिगेट कर रही है, सच सामने आएगा, ये पुलिस का दावा है। और जो भी हुड़दंगई हैं, जो भी दंगा करने वाले हैं, जो भी पथराव करने वाले हैं, उनके खिलाफ सब सख्त एक्शन लिया जाएगा, ऐसा पुलिस का दावा है। So there you have Republic TV reporting live from the site of violence where the violence broke out in Mhow, and we just showed you that video. We are still running that exclusive video that shows the truth. We do not see anything being hurled at the mosque. In fact, we see after 1 minute that there is a person calling people from the mosque. He stands there and he calls people, and then they gather and they start attacking the victory procession. पूरे देश में जश्न मनाया जाता है, उसके बाद महू में भी जश्न मनाया जाता है। यहाँ पर कुछ युवा जो है जुलूस निकालते हैं, जिसे विजय जुलूस कहा जाता है। उसके बाद इसी स्पॉट पर वीडियो में भी हम जैसा दिखा रहे हैं कि देखिए जामा मस्जिद है, मुख्य द्वार है जामा मस्जिद का। अभी यहाँ पर सन्नाटा है क्योंकि पुलिस की प्राथमिकता है कि किसी भी तरह से अशांति ना फैले। लेकिन इस स्पॉट पर बाइकें खड़ी होती हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं हूँ, यहीं पे बाइक यहाँ के रुकती हैं, ट्रैफिक रहता है काफी। यहाँ पर भारत माता की जय और बाकी नारे लगाए जाते हैं। लेकिन इसी में से एक शख्स जामा मस्जिद की तरफ जाता है और वहां इशारा करता है, वहां से लोग बाहर आते हैं। शहर काजी भी ये कह रहे हैं, उन्होंने भी बोला कि दोनों तरफ से पथराव हुआ, लेकिन वो शख्स पहले अंदर से लोगों को बाहर बुलाने के लिए इशारा करता है, दोनों हाथ हिलाते हुए अंदर से बुलाता है। और उसके बाद क्राउड जो है अंदर से, जो नमाजी है, जो नमाज पढ़ रहे थे, वो बाहर आते हैं। और जुलूस जहां पर था, इस जगह पर जुलूस इकट्ठा था, यहाँ पर दोनों तरफ से वाद विवाद होता है, हंगामा होता है। और उसके बाद जो तस्वीरें हैं वो साफ बताती है किस तरह से महू में आगजनी हुई, पथराव हुआ, लोगों के घर। There you have, viewers, what Satya Prakash is telling us clearly, that this was a planned conspiracy. We see, in fact, a team of these rioters coming outside from the mosque. They just come in. They barge out of the mosque, as in it was all planned, because a man is calling them that, he's actually gesturing and he's saying that come out, come out. And they all start attacking the mob. So clearly this is not a scuffle. There is no provocation. If a victory procession, a victory march, Bharat Mata Ki Jai, after India's victory in Champions Trophy provokes people, then it's, of course, one has to raise questions on the intent of these people, on the sentiments. There are people coming out of the mosque and they start attacking the people who are a part of this victory parade. And there you see, we are marking that in red. We have encircled that, what happened. People coming out on the call of that person at the gate of, or near the mosque, on the side of the mosque. And this is how the violence clearly, it's visible, begins. Where the violence started, there you see, nothing was happening before that. Nothing was thrown towards the mosque. In fact, there was, people start beating up, there was arson, there was stone pelting from many locations. But in this video, you see how the origin of those people coming in. And there is no firecracker being bursted, as there were many claims being made for such apologists that no, there were
firecrackers that were being bursted outside the mosque. But it was not the case. We do not see anything like that happening in this footage that we are running. There is no firecracker bursting outside the mosque. The victory procession was leaving very peacefully. And this video has been taken for investigation as well. 5 minutes and 40 seconds of this video. 1 minute 25 seconds is when a person starts calling people from the house. This is from the mosque, and people start coming out like they were waiting. It was a planned conspiracy, it seems. You can clearly see that it was all planned, that there is going to be a victory procession that will be coming, that will be passing by, and we need to attack them. This is the truth. Republic TV, first and exclusive. Everybody, of course, Republic TV has, this is the first and exclusive on Republic TV. The truth of the Mahou violence is out, and we are showing you this, how it all began. And the entire, the theories that have been peddled just to in fact obfuscate what has happened is all decimated now. The call for mobilization of those people is shown there. It is given to attack the victory rally, and that's what we are running. Republic TV exclusively exposing the truth, the rest following. In video you can see peaceful celebrations have been attacked. Satya Vijay, in fact, is joining us again from the spot of violence. Satya Vijay, बताइए किस तरह से हम देख रहे हैं, ऐसे आप बता रहे थे अभी वहाँ से कि लोगों को हम 1 मिनट 40 सेकंड के बाद देखते हैं कि लोग कोई इशारा करता है और वहाँ से लोग धड़ल्ले से निकलते हैं. हमें बहुत सारे लोग जो है एक साथ निकलते हुए आते हैं. तमाम हमें एक बार बैकग्राउंड बताइए अभी तक कि इमाम हो जाए और भी जो लोग हैं अलग अलग तरह के दावे कर रहे हैं, लेकिन इस वीडियो से उन दावों को किस तरह से खोखला दिखाया जा रहा है, इस पर विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए. देखिए, महू में जो हिंसा हुई उसकी हम लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं. फिलहाल देखिए, पुलिस ने खुद ये कहा है कि तमाम जितने वीडियो वायरल हो रहे हैं, जितने वीडियो उन्हें सीसीटीवी कैमरों से मिल रहे हैं, उन सब की वो सत्यता की जांच कर रहे हैं और उनके आधार पर आरोपियों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है. फिलहाल जिस दिन इंडिया चैंपियन ट्रॉफी जीती उस दिन महू में इसी रास्ते से देखिए वहां से विजय जुलूस निकल रहा था. अभी चूंकि पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रही हुई है और इस जगह से जुलूस गुजर रहा था. ये सामने आप देख सकते हैं जामा मस्जिद है. यहां पर इसके सामने जहां पर मैं खड़ा हूं, यहां पर विजय जुलूस जो है, लोगों का बाइक पर सवार लोग थे, हाथों में तिरंगे थे, भारत माता की जय के उनके नारे थे. लेकिन 5 मिनट का एक वीडियो हमारे पास है, हमें यहीं से वो वीडियो मिला है. उसमें देखिए 1 मिनट 25 सेकंड के बाद एक शख्स उस भीड़ में से इस जामा मस्जिद के गेट के पास आता है, लोगों को अंदर से बाहर आने के लिए इशारा करता है. उसके बाद अंदर से एक बड़ा हुजूम बाहर आता है और इस जगह पर जहां पर मैं खड़ा हूं, यहां पर जो बाइक सवार लोग थे, जो विजय जुलूस निकाल रहे थे, उनसे उनका विवाद होता है, उनसे उनकी बहस होती है और बहस के बाद मारपीट होती है, पथराव होता है, शहर में आगजनी होती है, कई दुकानों में आग लगा दी जाती है. फिलहाल देखिए स्थिति सामान्य, फोर्स तैनात है. जामा मस्जिद में यहाँ पर जो है बैरिकेडिंग कर दी गई है, तमाम पुलिस के लोग यहाँ पर हैं. लेकिन जिस तरह की बातें आ रही थी, शहर काजी से भी हमने एक्सक्लूसिव बातचीत की थी, उनका यह कहना था कि ये पुलिस पता लगाए, प्रशासन पता लगाए कि पहला पत्थर कहां से चला. तो इस 5 मिनट के वीडियो में मैं आपको सच्चाई बताने की कोशिश कर रहा हूं कि देखिए जो वीडियो हमारे पास आया है वो ठीक इस जगह का है. ये सामने जामा मस्जिद है, 5 मिनट का वो वीडियो है. 1 मिनट 25 सेकंड के बाद इस भीड़ में से एक शख्स यहाँ की ओर आगे बढ़ता है और यहाँ से इशारे से लोगों को बाहर आने के लिए कहता है. भीड़ बाहर आती है. उनका अपना तर्क है, उनका कहना था कि चूंकि नमाज चल रही थी और यहाँ पर तेज आवाज में नारेबाजी हो रही थी, इस दौरान जो विजय जुलूस है और अंदर से जो भीड़ आती है जामा मस्जिद के, इस अंदर से जो तमाम लोग थे जिन्हें की बुलाया गया था इशारा करके, जो भीड़ आती है वो भीड़ यहाँ पर इन लोगों के साथ मारपीट शुरू कर देती है. अब 2 चीजें हैं. जामा मस्जिद के जो शहर काजी हैं उनसे हमने बात की, उनका कहना था कि पुलिस पता लगाया कि पहला पत्थर कहां से चला. लेकिन वीडियो में कहीं पर भी विजय जुलूस कर रहे लोग जो है उनके हाथ में पत्थर नहीं दिखा. आतिशबाजी की बात है कि जो सुतलीबम फोड़ा गया वो काफी आगे, उस वीडियो में देखेंगे तो बहुत आगे दिख रहा था. तो अब जो सत्यता है उसकी जांच तो पुलिस को, प्रशासन को करना है. पुलिस बल यहाँ पर तैनात है सुरक्षा के लिहाज से, महू की शांति के लिहाज से. लेकिन बड़ा सवाल यही कि जो बात हो रही थी, भैया आप भी कुछ कहना चाहेंगे, बताएंगे. एक वीडियो आया है 5 मिनट का, आप इस मस्जिद के बगल में ही रहते हैं, उसमें अंदर से लोगों को बुलाया गया दिख रहा है. पथराव या आतिशबाजी जो बात हो रही है वो तो हमें नहीं दिख रही है.
सर बेसिकली अगर आप देखें तो मतलब मैंने यही की बात बोलूंगा कि 300 मीटर के दायरे में कोई कंस्ट्रक्शन साइट तो है नहीं, ना कोई ओल्ड कंस्ट्रक्शन साइट है, तो पत्थर आए कहाँ से? मतलब पहले से कहीं ना कहीं पत्थर रखे हो सकते हैं इसीलिए, क्योंकि इसके पहले भी हुआ था। यहाँ से साई पालकी यात्रा आज से 7 साल पहले निकली थी, तो 7 साल या 4 साल 5 साल पुरानी बात है, तो उस पर भी पथराव हुए थे। अच्छा, आप बताइए। बिल्कुल षड्यंत्र एक तरीके से पूरा हर बार की तरह। एक आया जिसमें अंदर से एक शख्स गेट पे जाता है जामा मस्जिद के और अंदर से लोगों को बाहर बुलाता है, उसके बाद वो लोग यहाँ पर मारपीट शुरू कर देते हैं। साले की दिख रहा है वीडियो में, सही से वीडियो है आपके पास? चलिए तो देखिए, इन लोगों ने भी कबूला कि वो वीडियो इनके पास भी है, और यही हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर महू में जो माहौल बिगाड़ा है उसकी सच्चाई क्या है, उसको उजागर करने का काम हम कर रहे हैं, उसका सच बताने का काम कर रहे हैं। और पुलिस ने भी बड़ी बात यह कि उस वीडियो को संज्ञान में ले लिया है। तो एक बार फिर तस्वीर दिखाते हैं। ये मस्जिद है, यहाँ मस्जिद के गेट पर शख्स जाता है और वहां अंदर से लोगों को इशारा करता है बाहर आने के लिए। बाहर विजय जुलूस चल रहा होता है, कुछ युवा बाइक पर रहते हैं, और जब अंदर से बाहर एकजुट होकर भीड़ आती है तो यहाँ पर मारपीट शुरू हो जाती है। और जब ये मारपीट यहाँ शुरू होती है, इसके बाद पूरे शहर में कई ऐसे पॉइंट्स हैं, कई ऐसे घनी बस्तियां हैं, मुस्लिम बहुल बस्तियां, वहां पर एक साथ पथराव शुरू हो जाता है, जिसमें कई दुकानें जलाई जाती हैं, कई बाइकों को आख्या वाले कर दिया जाता है। पूरे शहर में तनाव की स्थिति फैल जाती है, और इसीलिए यहाँ पर परसों मतलब 9 तारीख से लेकर अब तक चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स लगाया गया है। जी बने रहे हमारे साथ। वी हैव BJP leader RP Singh also joining us on the broadcast. Sir, this is a video that is showing the truth, a 5-minute 40-second video, and we do not see any provocation from the victory parade. In fact, in Mau, we see that a person standing outside the mosque, he calls out people and they just rush outside and start attacking the mob. Sir, your reaction, please. Well, this is a serious concern that without any reason you start pelting stones and bricks on people who are celebrating the victory of the country. It was not victory of BJP or any particular religion. And as per me, cricket is a religion in itself. And as per me, it's the most secular religion where everyone follows cricket. And in that too, because the people from particular community or people otherwise were celebrating with tricolor in their hand. So you start pelting stones because you feel that why India has won. I mean, that's very serious. And also, the state government should immediately curb on such elements, and they should be taken to task. So, right, sir. Thank you so much for joining us on Republic with your thoughts, with your reaction. BJP, of course, demanding the truth. Truth is there on the camera. Police has taken cognizance of this video. It is considering this for investigation. Remember, 13 people have been arrested. In fact, more than 40 have been named in the FIR. सत्यविजय कंटिन्यूज टू बी विद सत्यविजय, आप हमें बताइए कि अभी तक इन्वेस्टिगेशन को लेकर क्या कुछ सामने आया है? जो तमाम तहकीकात चल रही है, अलग अलग दावे कर रहे हैं अलग अलग लोग, चाहे हम इमाम की बात करें, चाहे हम प्रशासन की बात करें, लेकिन अभी तक सामने क्या कुछ आया है? क्या कुछ प्रूफ जो इकट्ठे हुए हैं? पुलिस क्या कह रही है इस मामले में? देखिए, अब से कुछ देर पहले ही हमने एसपी महू जो है उनसे बात की थी, एक्सक्लूसिव बातचीत की थी, जिसमें उन्होंने हमें अपडेट दिया कि महू में जो हिंसा हुई, जो हंगामा हुआ, जो पथराव आगजनी हुई, इसमें अब तक 8 FIR दर्ज कर ली गई हैं। 40 लोग नामजद आरोपी बनाए जा चुके हैं और कई ऐसे लोग हैं जो अज्ञात में हैं, उनकी तलाश की जा रही है। सबसे बड़ी बात है कि 13 आरोपी इसमें गिरफ्तार भी कर लिए गए, लेकिन 40 नामजद में से बाकी जो बचे हुए नामजद हैं वो अभी फरार चल रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा है। दूसरी बड़ी बात यह कि इस पूरे प्रकरण में जितने भी CCTV फुटेज हैं, जितने भी इसमें साक्ष्य सामने आ रहे हैं, उन सबको पुलिस ने संज्ञान में लिया है और पुलिस ये तर्क दे रही है, पुलिस का ये दावा है कि महू में इन आरोपियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जाएगी कि आगे महू में कभी आगजनी ना हो पाए, कठोर से कठोर सजा दी जाएगी। ये दावा पुलिस का है। लेकिन अभी बाकी आरोपी कहां हैं, कब उनकी गिरफ्तारी होगी, उनकी गिरफ्तारी के लिए कितनी टीम बनाई गई है, इन सब का स्पष्ट जवाब पुलिस के पास नहीं है। लेकिन ठीक है, स्थिति यहां पर सामान्य कर दी है। पुलिस की चौकसी की वजह से यहां पर हालात सामान्य हो गए हैं, बाजार खुल गए हैं, लेकिन बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी होना फिलहाल अभी बाकी है। चैलेंज है पुलिस के सामने कि वो जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करे और जितने भी एविडेंस पुलिस के सामने आ रहे हैं उसके आधार पर जो भी आरोपी है, चाहे वो किसी भी पक्ष से हो, हिंसा अगर हुई है, इंडिया की जीत पे अगर किसी को दिक्कत हुई है और उसके बाद अगर पत्थरबाजी होती है, तो जो आरोपी हैं उनकी जल्द गिरफ्तारी हो, इस ओर पुलिस काम कर रही है। पुलिस का यह दावा है।
Absolutely right, Satya Vijay. Republic TV exposing the truth there. Republic TV, the first channel, and the exclusively showing you those visuals coming in. Truth about the Mahu violence. As you can see, the rally has been targeted for just, for chanting India, chanting India's Bharat Mata Ki Jai. I think there is the tricolor basically. Even if you don't hear, you see that there have been people with the tricolor in their hand. If that provokes people and they start attacking them, well, there's lots to introspect what's happening and who's behind this, who's orchestrating this, because this clearly is a planned conspiracy, at least what we can understand from this video. 5-minute 40-second video this is, and after 1 minute 40 seconds, you see someone on the instructions of a person. We see this huge influx of these people coming out from the mosque and attacking the very peaceful procession as they celebrated India's victory of Champions Trophy. So this is what Republic TV is showing you, how it started, where it started. It's a peaceful procession that was going out. It was passing by a mosque, and it is, of course, nothing. There cannot be any ban on a victory, a celebration of any sort for India winning. There is no such law in the country that bans any sort of victory celebration. But we see that the people did not like it. DGP, SP, former DGP of Jammu and Kashmir, SP Vaid, joins us. We have this video. Republic TV is showing this video, 5-minute 40-second long, which the police is also considering now. Here you see, while there were multiple claims being made, we do not see any stone pelted or fireworks by the members of that victory parade. We do see people coming out on somebody's instructions from the mosque and attacking this victory parade, sir. It's very unfortunate. There are people who, unfortunately, in this country, vast majority who do love India and enjoy India's victory. But if there is a section people who probably, if they can't celebrate themselves, at least have patience to see other Indians enjoy the celebration. And there is absolutely no justification of attacking a celebration on the victory of India. If you are not Indian, you are most welcome to leave this country and go where the hell you want to go. Very unfortunate. Such people have no right to be here, and they need to be taught lesson. And I think they should do hijrat from this country. Right, sir. Thank you so much, SP Vaid, for joining us on Republic TV with your reaction coming in. Viewers, of course, this clearly shows, you can see how people have been beaten up there for simply celebrating India's victory. You see how people have been beaten up. They came in a